شہر مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، حکومت کی عملداری کہیں نظر نہیں آ رہی۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں 72 گھنٹوں سے موت کا بھیانک رقص جاری ہے۔ اب مسافر گاڑیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج بھی 25 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جبکہ 3 دن میں یہ تعداد 59 ہو گئی ہے۔ کراچی میں آج بسوں پر گولیاں برسائی گئیں۔ اورنگی ٹاؤن اور نارتھ کراچی میں دہشت گردوں کی مسافر بسوں پر فائرنگ سے 14 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ لوگوں کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کسی عالم میں خود کو بچانے ادھر ادھر بھاگیں تو کہاں بات ہے۔ جو بچے گھر کو گئے، باقی نے اسپتالوں میں بستر آباد کیا۔ پپا کالونی میں کئی بدنصیب انگی گولیوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ علاقے میں خوف ہی خوف ہے، دکانیں بند اور لوگ محفوظ ہیں۔ جو نکل سکتے ہیں وہ منتقل ہو رہے ہیں۔ جن لوگوں کا دیگر علاقوں میں کوئی رشتہ دار نہیں، وہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ سے ہلاک ہونے والے شخص کی بیٹی نے کراچی کے مقامی ہسپتال میں کہا کہ اسے بتایا جائے کہ اس کے والد کا کیا قصور تھا۔ کر دیا گیا، ان کا کیا قصور تھا اتنا تو بتا دیں۔ صرف میں یہ اپیل کرتی ہوں چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ ایوری تھنگ، جو حکومت کے عہدیدار ہیں کہ کہاں ہیں آپ، یہ بتائیں مجھے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں پاکستان میں، کراچی میں۔ میں پیپر دے کر آ رہی ہوں، میری گورنمنٹ کالج میں آج سے اسلامک اسٹڈیز کا میرا پیپر تھا، میں پیپر دے کر آ رہی ہوں۔ آپ یہ بتائیں میرے والد میرے ساتھ تھے، اب تک جاتے وقت وہ زندہ تھے، آتے وقت وہ ایکسپائر ہو گئے، کیوں، کس بات کی سزا دی گئی؟ میں ایک بات پوچھتی ہوں، قانون کے محافظوں سے کہاں تھے اس وقت جب یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم صرف جینٹس کو ماریں گے، جینٹس کو ماریں گے؟ آخر کیا قصور تھا؟ میں یہ پوچھتی ہوں آپ سے۔ اسپتال کا دورہ کیا اور زخمیوں کی عیادت کی، مزید ہمیں بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے طاہا عبیدی۔ جی طاہا، بتائیے گا کہ ایم کیو ایم کے کون کون سے رہنماؤں نے دورہ کیا اور اس موقع پر ان کا کیا کہنا تھا؟ جی اشفاق، بالکل اب سے کچھ دیر قبل ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر صغیر احمد اور وسیم آفتاب نے عباسی شہید اسپتال کا دورہ کیا ہے۔ جو زخمی لائے گئے ہیں اور جو جاں بحق لائے گئے ہیں ان کے لاواحقین سے بات چیت کی ہے دونوں رہنماؤں نے، جس کے بعد میڈیا کو بھی بریفنگ دی ہے، میڈیا سے بھی بات چیت کی ہے، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے بنارس پہ قصبہ کالونی پہ بسوں میں اندھا دھند فائرنگ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک جو ہے 12 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور 48 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ایم کیو ایم کو سزا دی جا رہی ہے حکومت سے علیحدگی کی، لیکن ایم کیو ایم کا حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ اٹل ہے اور ایم کیو ایم اس پر قائم ہے۔ اورنگی ٹاؤن، کٹی پہاڑی، قصبہ کالونی کی صورتحال جو ہے کشیدہ ہے اور وہاں پر جو ہے گھروں کو لوٹا جا رہا ہے، نظر آتش کیا جا رہا ہے اور وقفے وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس پہ حکومت نے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ کراچی کے واقعات۔ اچھا طاہا عبیدی، یہ بتائیے گا کہ اب تک عباسی شہید اسپتال میں کتنی لاشیں لائی گئی ہیں، کتنی زخمی لائے گئے ہیں اور زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ اشفاق، میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک جو ہے جو 6:30 بجے پہلی بس پہ فائرنگ ہوئی تھی میٹرو سنیما میں، اس کے بعد سے جو ہے اب تک جو ہے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے میں 13 افراد جو ہے جاں بحق ہو چکے ہیں، جن کو جو ہے عباسی شہید اسپتال لایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 48 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ شہر کی مجموعی صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ آج صبح 8 بجے سے اب تک جو ہے 32 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 60 سے زائد زخمی ہیں۔ اس وقت بھی عباسی شہید اسپتال میں 48 سے زائد زخمی یہاں پر موجود ہیں۔ 3 دن سے اشفاق صورتحال شہر کی یہ ہے کہ اب تک جو ہے 63 افراد جو ہے جاں بحق ہو چکے ہیں، 137 سے زائد زخمی ہیں۔ وقفے وقفے سے جن علاقوں میں کشیدگی ہے وہاں پر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اب اس میں جو ہے زیادہ کشیدگی اس وقت ہوئی جب بنارس پہ قصبہ کالونی اور دیگر علاقوں میں میٹرو سنیما کے پاس جو ہے بسوں پر فائرنگ کی گئی۔ بہت بہت شکریہ طاہا عبیدی۔ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر صغیر احمد نے کہا ہے کہ ارباب اختیار ہوش کے ناخن لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام اپنا لاہے عمل خود اختیار کر لیں۔ عباسی شہید اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کو حکومت سے علیحدگی کی سزا دی جا رہی ہے اور بے دردی سے مسافر گاڑیوں میں عوام کو شہید کیا گیا۔ ڈاکٹر صغیر احمد کا کہنا تھا کہ امن کو کمزوری سمجھا گیا، انتظامیہ اپنی روش بدلے اور ہوش کے ناخن لے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خاموشی اور امن پسندی کو کمزوری سمجھنے والے احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صغیر احمد نے ارباب اختیار کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام اپنا لاہے عمل خود اختیار کر لیں اور مٹھی بھر دہشت گردوں کو سبق سکھا دیں۔ تقریباً 3 سے 4 روز ہو گئے ہیں کہ بے رحمانہ، بے ایمانہ، ظالمانہ، سفاکانہ
तरीके से कराची के शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है और ये मैसेज दिया जा रहा है कि एमक्यूएम ने जब अपोजिशन में बैठने का फैसला किया तो ये सजा दी जा रही है। हद से ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इन तमाम अफराद को लूटने के बाद उनकी एक एक शनाख्त, उनकी जेब में जो भी चीजें मौजूद थी वो निकाल ली गई, उनकी शनाख्त को खत्म करने की कोशिश की गई। एमक्यूएम के उसूली मौक़िफ़ की अब सजा दी जा रही है और पुलिस ये बात कर रही है कि वो इक़दामात कर रही है, वो लॉ एंड ऑर्डर को रेस्टोर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है ये सबके सामने है। वो इक़दामात जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए होने चाहिए वो कहीं नजर नहीं आ रहे। लोग मोर्चा बंद होकर भारी आतिशी असला के साथ कराची के शहरियों के साथ खून की होली खेल रहे हैं। बारे से जो आज मीडिया पर एक और हमला हुआ है, देखें, जो गुज़िश्ता कई दिनों से कराची की सूरत हाल है उस पर यकीनन अभी चंद मिनट कबल जो है रजा हारून साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मीडिया को आगाह किया है और यकीनन इसी सूरत हाल के हवाले से हमने मीडिया से भी दरख्वास्त की थी कि वो अपनी आंखों से जाके सूरत हाल देखें कि अचानक जो शहर के अंदर जो 3 दिन के अंदर जो कत्ल गारत गिरी का जो बाजार गर्म किया है, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इस बात की सजा दी जा रही है कि जो सूरत हाल अभी जो इमर्ज हुई है उसमें यकीनन हमने जो ऑपोजिशन में जाने का फैसला किया है, तो ये उन तमाम बातों की जो है वो सजा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दी गई है। और यकीनन मैं समझता हूँ कि आज जो कुछ अभी थोड़ी देर पहले जो भी न्यूज़ 1 की टीम के साथ हुआ है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन और पूरी राब्ता कमेटी इस वाक़े की भरपूर अंदाज में मजम्मत करती है और यकीनन मुतालबा करती है सदर मुमलिकत से कि वो इस तमाम तर सूरत हाल को बगौर अब जायजा लें, चीजों को देखें कि जिस तरह अब शहर कराची के अंदर जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले जो है वो अब्बासी क्षेत्र में 12 लाशें पहुंची हैं, जिस तरह लोगों को बेदर्दी से गोलियों का निशाना बनाया गया है, तो ये किसी न किसी घर की औलादें, किसी न किसी के ये बच्चे हैं जिनके साथ बेरहमी से इनको कत्ल किया जा रहा है। तो अगर ये सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया गया तो यकीनन इस तमाम तर जिम्मेदारी की जो सूरत हाल होगी वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर होगी, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कोई भी स्टेप इस तरह के नहीं ले रहे कि जहां पर अवाम की जान और माल का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किया जा सके। पुलिस जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी खड़ी है, रेंजर्स का कहीं नामो निशान नहीं है और लोग जो है वो जो है बिल्कुल बेरहमी से जो है वो खत्म किया जा रहा है। ये आपने बिल्कुल कहा कि बेरहम लोग हैं। कौन लोग हैं ये लोग जो इस तरह इन्होंने हमारे एहसन अब्बासी जो रिपोर्टर हैं, जो क्राइम रिपोर्टर हैं, पूरी उन्होंने हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया, उसके बाद कैमरामैन से कामरान खान, तो ये कौन लोग हैं जो इतनी बेदर्दी से मीडिया के नुमाइंदगान को भी और मासूम लोगों को भी तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि तमाम चीजें एविडेंट हैं, ठीक है, मुझे मेरे ख्याल से नाम लेने की जरूरत नहीं है और पूरा इस वक्त माशरा, पूरे कराची में रहने वाले एक एक फर्द जो है वो सब जानते हैं। लेकिन वासिफ जलील साहब ये बात सामने ला रही है हमें लोगों के कौन लोग हमने पिछले दिनों बाज़ाब्ता तौर पे मीडिया को फुटेजेस जारी की हैं कि कराची के अंदर पर्पसली जो है, क्योंकि देखें जी ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये डिजाइंड स्ट्रेटेजी के तहत जो है वो चीजें की जा रही हैं। पर्पसली जो है यहाँ की सूरत हाल जो खराब की जा रही है ताकि कराची जो है वो सवालिया निशान बन जाए और लोग जो है वो आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरफ्तार हो जाए। पिछले दिनों भी जो है मस्जिद से इसी वजह से जो है वो ऐलान किया गया था कि जहाँ पर उर्दू बोलने वालों को जो है वो यहूदी नस्ल जो है वो करार दिया गया था। तो लोग खुद ब खुद चीजों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कौन लोग हैं, जिस तरह ये इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंद, ड्रग माफिया, लैंड माफिया के लोग हैं, गैंग वॉर के लोग हैं जो इन तमाम तर सूरत हाल के अंदर इन्वॉल्व है। क्या ये तमाम लोग हैं जिनके पास एविडेंसेस, पुलिस के पास एविडेंसेस मौजूद हैं, पुलिस को डायरेक्टिव दें कि यहाँ पर जो है इन इलाकों के अंदर कार्रवाई होगी और चीजों के अंदर जो है वो इंटरवीन नहीं करना है। तो ये तो पुलिस कहाँ है? मैं डायरेक्टिव्स की बात कर रहा हूँ कि डायरेक्टिव्स देने वालों को ये डायरेक्टिव्स दी गई है कि उन तमाम इंसिडेंट्स, उन स्पॉट्स के ऊपर नहीं जाना है। तो यकीनन पुलिस को हिदायत देने वाली कौन अथॉरिटीज हैं, किसके पास इस वक्त रूलिंग हुकूमत है, या जिनकी हुकूमत है उनको फॉलो किया जा रहा है, सूरत हाल को खराब किया जा रहा है जानबूझ के। पुलिस नहीं है, रेंजर्स नहीं है, ये तमाम वाकया पेश आया, काफी देर उन्होंने घेरे रखा है एहसन अब्बासी को, हमारे रिपोर्टर को, कैमरामैन को, लेकिन पुलिस कहीं नहीं थी। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक बात है और इस वक्त अगर हुकूमत, मौजूदा हुकूमत नहीं जागी तो कल जो है कराची के अवाम ने अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अपने हाथ में ले ली तो फिर कौन इसका जिम्मेदार होगा? कल जो है वो तमाम तक जवाबदेही जो है मतलब कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो है वो मौजूदा हुकूमत को देखना पड़ेगा तमाम चीजों के अंदर। ये उनकी जिम्मेदारी है कि चीजों को जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें। हम तो अपील कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम लोगों को दिखा रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल को जो है वो जानबूझकर जो है वो खराब किया जा रहा है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो उसने फैसला किया, जो उसका जमहूरी हक है,
उस फैसले की जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सजा दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया वासिफ जलील साहब, न्यूज़ वन के नाजरीन से इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगी टाउन बुखारी कॉलोनी के इलाके में। इतनी शदीद फायरिंग है, अगर हमारे आप राइट साइड पर देख सकें तो ताहद निगाह आपको कुछ नजर नहीं आएगा सिवाय इसके कि सन्नाटा है। और अगर दिखा सके हमारे कैमरामैन कि ताहद निगाह ये मोड़ है और बुखारी कॉलोनी का, और फायरिंग जो है वो सामने की तरफ से हो रही है। न सिर्फ यहाँ पर आवाम महसूर है बल्कि आप अगर देख सकें तो पुलिस एहलकार एक जगह पनाह लिए हुए हैं यहाँ पर, और हम उनके पास मौजूद हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच सके हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद जब हमने इनसे बात की है, इनका कहना यही है कि किसी किस्म के कोई ऑर्डर्स नहीं है कि हम रिटेलिएट करें या जो लोग सरपसंद फायर कर रहे हैं उन पर जवाबी कोई फायर किया जाए। आप सुन सकते हैं कितनी शदीद फायरिंग है, और उसमें न सिर्फ ये जो कि हिफाजत पे मामूर है खुद महसूर होकर रह गए क्योंकि इनको बिल्कुल फायर करने की इजाजत नहीं है। हम बात करेंगे जहाँ पर मौजूद एक पुलिस एहलकार से, उनसे पूछेंगे क्या परेशानी आपको सब पेश। कहाँ से हैं, किस जगह से, कौन से थाने से हैं, किस जगह से? हम सेंटर से हैं, रजा का बस है। अच्छा, तो यहाँ आके क्या फंस गए हैं, क्या हुआ है? ना यहाँ ड्यूटी से मुझे। तो क्यों आपको ऑर्डर नहीं है कि क्या कुछ करना भी है या नहीं, कुछ किया अब तक नहीं? हम ड्यूटी से हैं। अच्छा, एक और हमारे साथ यहाँ पे हैं पुलिस एहलकार, हम उनसे भी पूछेंगे क्या क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मुश्किल है? सर हम सुबह से जब से आके बैठे हुए हैं यहाँ पे, न कोई थानेदार आया हमसे मिलने के लिए, न कोई हमारे प्रोटोकॉल की कोई गाड़ी हमारे लिए रखी हुई है। चारों तरफ से फायरिंग हो रही है, हम मोर्चा बन लगे पड़े हैं, न हमें कोई आर्डर मिल रहा है कि आप फायर करो या किसी को रोको या कोई मना करो। इसी जगह पे हम बैठे हुए, ना हमसे कोई पूछने, ना खाना देने आया, न कोई पानी देने वाला है। इतनी परेशानी में कब तक रहेंगे, कब तक यहाँ पे बैठे? जब तक सर आर्डर मिलेंगे, आज दूसरा आर्डर मिलेगा तब तक यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर मरने के लिए छोड़ देंगे यहाँ पे।